Hello everyone. So last time we started a new topic, although it is related to the previous topic, but we have started at the force exerted by the jet on moving plates. Okay. In the previous lectures, we study about when the plate is stationary, but we are dealing here with the when plate is moving. Okay. So we studied in last lecture three cases. Okay, the case of vertical plate when the plate is moving, and the case of inclined plate, and the third one is curved plate. Today we are going to start a new topic, which is force exerted by the jet of water on an unsymmetrical, remember this thing, unsymmetrical moving curved plate. Okay, when jet strikes tangentially at one of the tips. Okay, in the last curved plate, we seen the jet is striking at the center. Okay, so today we will start when the jet is striking at tangentially and the plate which is curved is unsymmetrical. Okay, this case we already studied in the sorry, in the stationary plate also. There is some difference between this and that, because because the plate is moving in this case. Okay, so let's start. Here is the diagram. Here I've shown you diagram. It is a lengthy topic, so it will take time. Okay, see here, this is the diagram. Okay, so यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहले ये कवर प्लेट है हमारे पास, जो जेट ऑफ वाटर है. मान लो यहाँ पे हमारे पास जेट आ रहा है एक. ठीक है, जेट ऑफ वाटर है, वो स्ट्राइक कर रहा है टेंजेंशियली इस प्लेट को. ओके, टेंजेंशियली प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद ये फ्लो क्या होगा, आउटसाइड आउटलेट पे बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि प्लेट जो हमने ज्यूम करनी है वो करनी है स्मूथ. ओके, स्मूथ एंड नो एनर्जी लॉस इन द प्लेट. ओके, सो पहले देख लेते हैं ये टर्म्स हैं क्या क्या. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज v1 which is the velocity of the jet at inlet. Okay, this is the velocity of the jet at inlet. Okay, I have not shown the jet here, but here is the jet. Okay, here the jet, or we have taken point A here. Okay, the jet is here. Okay, now u1, what is u1? This u1 is the velocity of the plate at the inlet. Okay, this u1 is the velocity of the plate at the inlet. One thing is, here is v or 1. This v or 1 is what? This v or 1 is relative velocity of jet and plate at inlet. Okay, 1 we are denoting the inlet, and 2 we are denoting the outlet. Okay, so vr1 here is relative velocity of jet and plate at inlet. Now this angle is alpha. Okay, alpha. I told you when the plate is unsymmetrical, the angle at the inlet and the angle at the outlet will be different. So here we are taking the different angles. Okay, so what is this angle alpha? Angle alpha is the angle between the direction of jet. Okay, this is the direction of the jet, and what, direction of the motion of the plate, and this is the direction of the motion of the plate, which is u1. Okay, this is denoted by alpha. Similarly, this angle, this alpha is also known as, you have to remember this, alpha is also known as guide blade angle. Okay, this alpha is also known as guide blade angle. Okay, one more angle is here. Here is theta. It is the angle made by the relative velocity. I told you what is relative velocity, this vr1. Okay, angle made by the this vr1, angle made by the relative velocity vr1 with the direction of motion at outlet, at the inlet, sorry, inlet. Okay, so here is the relative velocity and here is the direction of motion at inlet. तो इसके बीच में जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास थीटा है. दिस थीटा एंगल इज आल्सो नोन एज वेन एंगल. ओके, अल्फा को हम क्या बोलते हैं, गाइड ब्लेड एंगल, और थीटा को हम बोलते हैं वेन एंगल एट इनलेट. ओके, अब इसके अलावा दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, वो तो चीजें आपको दिख रही होंगी शायद. यहाँ पे देखो, एक ये है VW1 और एक है VF1. अब ये क्या चीजें हैं, VW1 और VF1 जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट V1 है. ओके, ये V1 जो है ना, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिए हैं मैंने, एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट लिया और एक ये वेलोसिटी कंपोनेंट लिया हुआ है. ठीक है,
किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो प्लेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और दूसरी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन में मैंने ये दो कंपोनेंट्स ले लिए। ओके, अब इन VW1 और जैसे हम इनको गाइड ब्लेड एंगल बोलते हैं और उसको थीटा को हम बोलते हैं वेन एंगल। सिमिलरली W1 जी VW1 जो है इसको हम बोलते हैं वर्ल, WHIRL, ठीक है, वर्ल एट इनलेट। ओके, ये हम बोलते हैं VW1 को। और जो हमारे पास VF1 होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। ओके, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। ओके, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, पूछ सकते हैं आपको कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया इनलेट वाला पोर्शन। अब सिमिलरली हमारे पास एक आउटलेट पोर्शन भी है जहाँ से वाटर बाहर निकलेगा जेट के स्ट्राइक करने के बाद। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। V2 हमारे पास क्या है? ओके, ये वाला V2 हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ जेट लीविंग द वेन। ओके, या फिर आप कह सकते हो जो आउटलेट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारे पास V2 है। और U2 क्या है? U2 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट। ओके, वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेट एट आउटलेट। नाउ VR2 सिमिलरली जैसे VR1 था वैसे ही VR2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट विद रिस्पेक्ट टू द वेन एट आउटलेट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा बन रहा था और यहाँ पे थीटा, पर अगर ये सिमेट्रिकल का केस होता, ओके, सिमेट्रिकल का केस होता तो यहाँ पे भी एंगल अल्फा और थीटा होते, बट हियर इट इज अनसिमेट्रिकल। तो जहाँ पे जो एंगल होंगे वो हमारे पास क्या है, हमने अलग एंगल ले लिए, बीटा और फाई। अब देखो बीटा क्या है? बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द V2। ये जो V2 है हमारे पास, V2 और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमने बीटा ले लिया। और सिमिलरली फाई क्या ले लिया? एंगल बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी VR2 दैट इज दिस VR2, इसके बीच में, और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट द आउटलेट, ये आउटलेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके बीच में जो एंगल है वो हमने ले लिया फाई। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी VW2 है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको जूम करते हैं। कैसी है? ये VW2 है और ये है हमारे पास U2, सॉरी ये VW2 है और ये हमारे पास VF2 है। ये भी क्या है हमारे पास? ये हमारे V2 के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये V2 जो है इसके कंपोनेंट्स, एक इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेन दैट इज आवर प्लेट यू कैन से, एंड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ वेन दैट इज VW1, VW2 और VF2। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसे कैसे लिया है। अब इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि क्या चीज़ क्या क्या है। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो जैसे हम VW1 को क्या बोलते थे? वर्ल एट इनलेट, तो इसको VW2 को वर्ल एट आउटलेट बोलेंगे, और VF2 को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। अब आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि यहाँ पे बन रही है दो ट्राइंगल्स, ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। यहाँ से जी कह सकते हो कि एक ट्राइंगल हमारी इनलेट पे बन रही है और एक ट्राइंगल हमारी आउटलेट पे बन रही है। ओके, तो देखो, जो इनलेट पे ट्राइंगल बन रही है वो हमारे पास ABD है, और जो आउटलेट पे ट्राइंगल बन रही है वो हमारे पास क्या है? EG और H। ओके, तो इसको हम एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं इसका। सबसे पहले ले लेते हैं जो वेलोसिटी ट्राइंगल जो इनलेट पे बन रही है, तो ये वो कैसे बनी। ओके, तो वो कैसे बनी? हमारे पास एक जेट था जहाँ से वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, तो उस डिस्चार्ज की लाइन में हमने एक पॉइंट ले लिया A। ओके, तो वो हमारे पास पॉइंट आ गया हमारे पास A। ओके, अब क्या करेंगे हम? A से एक लाइन ड्रा करेंगे AB, ठीक है, AB एक लाइन हमने ड्रा की जो क्या हमारे पास आ गई V1 की इक्वल आ गई, ठीक है। ओके, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रही है किसका? V1 का। V1 की डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड क्या है? V1। ओके, तो ये जो एंगल, ये जो AB है, ये क्या एंगल एंगल अल्फा बना रहा है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन AD के साथ। ओके, ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे। वो हमने क्या किया था कि वो इसके कंपोनेंट्स लिए थे, आपको पता है कि हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए थे, एक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन
और इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल AD के साथ बना रहा है वो बना रहा है अल्फा, यहाँ तक याद है। उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने A से एक लाइन ड्रा कर ली C तक। ओके, C तक हमने एक लाइन ड्रा कर ली और इस C को ज्वाइन कर लिया B के साथ। ओके, AC हमारे पास क्या है, ये हमारे पास U1 है। ओके, U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेन। ठीक है, उसके बाद ये हमने ज्वाइन कर लिया CB को, और CB जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है, जो CB रिप्रेजेंट कर रही है वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो कर रही है VR1 विच इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि हमने ए पॉइंट ले लिया, ए से हमने बी ड्रॉ कर लिया, कि बी तो क्या ड्रॉ कर लिया, ये तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा इसको। उसके बाद यहाँ से हमने एक लाइन ले ली ए सी। ठीक है, ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया बी से, जो हमारे को हमको शो करेगा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, अब हमने कंसीडर किया है कि जो हमारे पास जो एनर्जी का लॉस है, ये मैंने पहले भी बताया, वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने स्मूथ प्लेट कंसीडर की हुई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट जो होगा वहाँ से एक वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, बी पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो डी पे मीट करेगी। ओके, और इस डी को हम ज्वाइन कर देंगे सी के साथ, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी ट्राइंगल बन जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्राइंगल कैसे बनानी है हमें। ओके, ताकि आपको याद रहे। तो बी डी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। ओके, तो ए डी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज VW1, वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ल एट इनलेट। और एंगल BCD, दैट इज एंगल BC और D, दैट इज एंगल थीटा। ओके, वो हमारे पास एंगल थीटा जो रिलेटिव वेलोसिटी बना रही है, ये जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट किसके साथ बना रही है, मोशन ऑफ वेलोसिटी इन द मोशन ऑफ इसकी वेन की। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इनलेट ट्राइंगल का। सिमिलरली हमारे पास जो आउटलेट ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास आउटलेट ट्राइंगल है। एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके बना देता हूँ ताकि आपको ईजिली देख पाओ आप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास है BW2। ठीक है, ये हमारे पास है U2। ओके, ये हमारे पास U2 है। ओके, ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट, ये हमारे पास वेलोसिटी एट आउटलेट। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये याद रखना। ओके, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए VF2। ओके, और ये हमारे पास एंगल बीटा, और ये हमारे पास एंगल फाई। अब इस केस में भी हमें क्या अज्यूम करना है कि हमारे पास जो प्लेट है वो हमारे पास स्मूथ है और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो वाटर यहाँ से आएगा, ठीक है, जो वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है प्लेट से, वो ग्लाइड करके कहाँ जाएगा, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी V1 से ही, मैंने बोला था मूविंग प्लेट में रिलेटिव वेलोसिटी से ही मूव करेगा, तो VR1 वेलोसिटी से, और कहाँ जाएगा, यहाँ पे VR2 पे। ठीक है, यहाँ से V1 से VR1 से मूव कर रहा है, और जब आउटलेट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी VR2, क्योंकि हम आउटलेट सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें क्या पता लगा, देखो यहाँ से तो हमारे पास VR1 आ रहा था, पर यहाँ भी VR2 लिख लिया हमने, पर एक्चुअली इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, VR1 इक्वल टू VR2, दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है। और जो हमारे पास ये तो क्या होगा इसकी वजह से, जो रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट, और जो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे है, ठीक है, ये जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे है, ठीक है, ये किसके, ये हमारे टेंजेंट डायरेक्शन टू द वे नेट आउटलेट होगी, जैसे ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टेंजेंट डायरेक्शन टू द आउटलेट होगी। ये मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि वेलोसिटी की। ओके, अब क्या करेंगे हम, ई से हम एक जी पॉइंट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द आउटलेट में हम एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था सिमिलरली। ओके, अब वहाँ जी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे GF, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे GF। ओके, जो इसकी डायरेक्शन F की डायरेक्शन कौन सी है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेन, जो हमारे पास कप प्लेट की डायरेक्शन में जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में है। और ये किसकी इक्वल हमने ले ली, जैसे नीचे वाले केस में ली थी वो हमने ले ली U2 की इक्वल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला E जैसे इस केस में किया था, इस F को E से ज्वाइन कर देना।
ओके। उसके बाद जो ईपी, ये जो ई और एफ जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है किसकी? जेट की। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज v2। ओके, इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, और फिर हमने क्या करना है, ई से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, जैसे यहाँ बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रा की थी, और उसको एफ से ज्वाइन कर लेना है। ओके, और उसके बाद हमें जो ये जो क्या है, ये जो ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर देना है। यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया और उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर देना है एच तक। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है, ई एच जो हमारे पास है, ये ई एच जो है मैंने आपको बताया था वर्टिकल, किसका वर्टिकल कंपोनेंट है? वेलोसिटी का, v2 वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और एफ एच क्या है हमारे पास, ये एफ और एच, ये हमारे पास है VW2, जैसे उसमें था। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्लेट आउटलेट VW2। ओके, फाई और बीटा एंगल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो, जो प्लेट हमने अज्यूम की थी, कपड़ प्लेट या वेन बोल सकते हो, वो स्मूथ थी, और उसमें जो स्मूथ होने के कारण जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो प्लेट की वेलोसिटी होगी वो दोनों साइड, इनलेट और आउटलेट पे, ठीक है, इनलेट और प्लेट पे प्लेट की वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वेलोसिटी प्लेट तो सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, तो इसलिए यहाँ पे u1 और u2 भी से इक्वल टू u, मतलब सेम इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो और रिलेटिव वेलोसिटी हमने देख लिया था, क्योंकि देखो जब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से एंटर कर रही थी, यहाँ से VR1 से ग्लाइड होके यहाँ से बाहर आ रही थी, तो मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पे थी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे थी। यहाँ ऑब्वियसली हमने नाम इसको VR2 दिया है, बट एक्चुअल में जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सेम है, मतलब VR1 जो हमारे पास इक्वल है VR2, और जो हमारे पास प्लेट का जो वेलोसिटी है वो भी u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u है इस केस में, सिमेट्रिकल के केस में। ओके, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? इनलेट के केस में रो ए। ओके, VR1। अब इधर मैंने v माइनस यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि VR1 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VR1 हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसको v माइनस यू लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली इसको VR1 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी वेलोसिटी, सॉरी फोर्स निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड हमने निकाल लिया, तो फोर्स कैसे निकल जाएगी? फोर्स निकल जाएगी एफ एक्स, किसके इक्वल निकल जाएगी? वो निकल जाएगी हमारे पास मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी विद विच जेट स्ट्राइक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फाइनल वेलोसिटी से। ओके, ओके, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, जिस जेट से जेट स्ट्राइक कर रहा था, वो थी VR1, विच इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमने 3-4 केस कर लिया, हमने लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी उसमें क्या होती थी, v माइनस यू, विच इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने VR1 लिख लिया। तो क्लियर है यहाँ तक? VR1 तो आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने इस इनिशियल वेलोसिटी के ले लिए कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट ले लिए मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखा था आपने ट्राइंगल जो हमारी थी, जैसे ये हमारे पास VR1 इस डायरेक्शन में था, ये इनलेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में था हमारा मोशन जो थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आप, अगर मैंने कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा, सॉरी, कॉस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है ना कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा था तो कॉस थीटा हो गया, तो बेस क्या है यहाँ पे, ये वाली चीज। ओके, तो ये वाली चीज अगर आप डायग्राम में देखोगे तो टोटल हमारे पास यहाँ से तो VR1 था, और ये था, आपको क्लियरली दिखाता हूँ डायग्राम में। यहाँ देखो डायग्राम में हमारा कुछ इस तरह से था, ये थी हमारे पास ऐसे, ये जेट स्ट्राइक कर रहा था ऐसे, इस तरह का था कुछ, ठीक है, यही था ना। तो ये हमारे पास टोटल जो था, ये वो था VW1, यहाँ एंगल बना रहा था थीटा, और ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी VR1। ओके, यही क्लियर है यहाँ तक? अब हमने कॉस थीटा ले लिया, कॉस थीटा क्या होता है ये, ठीक है, इतना सा पोर्शन ले रहे हैं हम, तो टोटल VW1 है, और ये था हमारे पास U1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास अगर ये डिस्टेंस निकालना होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा, पहले देखो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा आएगा, बेस क्या है, बेस है हमारे पास ये, विच इज इक्वल टू VW1 माइनस U1।
अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ये वाला टर्म, ये आ जाएगा VR1। ओके, तो ये cos थीटा इसके इक्वल आ जाएगा, और यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो द कंपोनेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, VR1 cos थीटा इज इक्वल टू, ये लिखा, इस टर्म को मैं यहाँ ले गया हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा VW1 माइनस U1। ओके, सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, जो ये तो हमने इनलेट की बात कर ली, तो आउटलेट पे हमारे पास सिमिलरली कैसे निकल जाएगा, वैसे ही हमने आउटलेट पे भी हमारे पास ये आ जाएगा माइनस VR2। ये मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि आउटलेट पे आपने देखा था कि जब टेंजेंशियली यहाँ से ऐसे आ रहा है, पर जो आउटलेट पे है वो डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है नेगेटिव साइन एज कंपोनेंट ऑफ VR2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब ये हमारे पास आई टर्म्स, ठीक है, ये हमारी इनलेट और आउटलेट की टर्म्स आ गई, इसको हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना अब, जो हमने मोमेंटम इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, Fx फोर्स निकालनी है जो हमने, क्योंकि फोर्स तो टोटल आएगी ना एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो सॉरी इनलेट और आउटलेट में, तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, मास स्ट्राइकिंग हमने पहले से निकाल दिया है, VA इंटू VR1। ओके, ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स ले लिए, तो इसका जो कंपोनेंट आया वो क्या आया, VW1 माइनस U1, ये वाला टर्म, और यहाँ पे क्या आया, माइनस U2 प्लस VW2। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, VU1 इज इक्वल टू रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस VW2। अब U यहाँ से मैंने कहाँ गायब कर दिया, आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U, मतलब ये वेलोसिटी जो होगी प्लेट की वो सेम रहेगी, और एक चीज़ और बताई थी कि रिलेटिव वेलोसिटी वो भी सेम रहेगी, VR1 इज इक्वल टू VR2 रहेगा। ओके, तो वहाँ से हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके ओके, अब देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये तब तक ठीक है जब तक हमारे पास जो बीटा का एंगल है वो हमारे पास एक्यूट हो, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री हो, तब तक ये एंगल, ये हमारे पास इक्वेशन ठीक है। ओके, अगर हमने 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल पुट किया, ओके, ये वाली इक्वेशन जो प्लस आ रहा है ना बीच में, ये चीज़ आपको यही बताना चाहता हूँ मैं, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकली एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए, ये हमारे पास किसके लिए है एंगल, ये एक्यूट एंगल के लिए है। ओके, तो अगर हम सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल के लिए निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये सेम इक्वेशन, बट हेयर विल बी नेगेटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर है, मीन्स कि एक्यूट एंगल के लिए ये इक्वेशन आएगी, ऑब्ट्यूस के लिए आएंगी, और 90 डिग्री जब वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये VW2 जो होगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए V1 VW1। तो ये हमारे पास 3 केसेस आ गए, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मीन्स 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 केसेस आ गए। फाइनली जो हम इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, रो ए VR1 इंटू VW1 प्लस माइनस, क्योंकि एंगल कुछ भी दिया हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस माइनस VW1 प्लस VW2 लिख लिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास अब निकल गई फोर्स। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अब निकल गई फोर्स। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमने, अब निकालना है नेक्स्ट टर्म फोर्स, सॉरी वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए क्या निकालेंगे, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस पर सेकेंड, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू यू, विच इज द डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो एफ एक्स, ये जो हमारी आई थी एफ एक्स, इसको अगर यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन तो अभी तक आपको याद होगा होगा कैसे निकाला है, सिंपल यू से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब नेक्स्ट हमें और क्या निकालना है इसमें, इसमें 2 एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है। जो हमने अभी वर्क डन निकालते थे पहले, वो क्या निकालते थे हम, वो होता था वर्क डन पर सेकेंड ऑन द वेन बाय द जेट। ठीक है, जो जेट वर्क डन कर रहा है किस पे, वेन पे, वो हम निकालते थे। अब हमें निकालने को बोल दिया अगर वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ अगर हमें बोल दिया पर यूनिट ऑफ वेट, ओके, वर्क डन पर सेकेंड तो है ही, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला वो तो है ही, पर साथ में बोल दिया पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो हमें उसे पर यूनिट, तो ये तो टर्म हमारे पास निकली हुई है पहले से, ये वाली,
ठीक है। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड किया इन्होंने किया है कि यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड। तो यूनिट वेट तो कैसे आ जाएगा? अब वेट किसके इक्वल होता है? वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल। W इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो मास को कैसे लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वी आर वन विच इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो वही टर्म्स मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की और यहाँ पे हमें पास अगर हमें पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड बोला तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके। सिमिलरली अगर हमें पूछा हो, ये तो हमने पूछा वेट, अगर हमें पूछा हो पर यूनिट मास, तो मास में क्या होगा? सिर्फ जी नहीं आएगा। ओके। बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ जी नहीं आएगा क्योंकि वेट किसके इक्वल होता है? वेट तो होता है एम इंटू जी। अब मास ही पूछा हुआ है तो सिंपल मास ही लिखेंगे, जी जी का तो कोई यूज़ नहीं है इसमें। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी एफिशिएंसी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में पहले बताई थी। वो किसके इक्वल आई थी? वर्क डन जो हमने ऊपर निकाला था पर सेकंड ऑन द वेन। ओके। तो नॉर्मली जो हमने वर्क डन निकालना है ना, जो तो वो वैसे ही निकालना है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस पर सेकंड। पर अगर आपको वेट, ठीक है, अगर आपको वेट या मास से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है, स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उससे। ठीक है। तो इनपुट के लिए आ जाएगा वर्क डन पर सेकंड और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। तो m को कन्वर्ट कर लेना आप किस में? रो इंटू ए इंटू वी स्क्र में कन्वर्ट हो सकता है, ये रो इंटू ए इंटू वी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी भी न्यूमेरिकल्स में इजीली निकल जाएगी। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे तब फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे आपकी ये कहाँ से इक्वेशंस आई थी। ओके। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। ओके। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की इक्वेशन आ गई। ठीक है। वही मैंने मास को इन्होंने कैसे लिख दिया? रो ए वी वन की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है। अगर आप एम की टर्म्स में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। पर ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी क्योंकि वहाँ पे मास शायद ना दिया हो तो एरिया इंटू वेलोसिटी आपको दिया हो, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास केस अनसिमेट्रिकल का। ओके। तो काफ़ी लेंथी केस था, तो किसी को कोई अगर इसके बाद भी कोई डाउट आएगा तो वो पूछ सकता है। ओके। तो इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। आज हमने सिर्फ क्या किया, हमने एक कर्व्ड प्लेट पे जो टेंजेंशियली हमारे पास जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और जो प्लेट्स अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में हम उसका वर्क डन, फोर्स एक्सर्टेड, ओके, तो एफिशिएंसीज कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ से आ जाए, ये हमने आज किया। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।